Hello students, I am Nisha Mandiratta. Welcome to the JBG classes. Hope you all are keeping well. We are going to start chapter 2 Principles of Management. Principles refers to the fundamental truth which establish cause and effect relationship among two or more variables under a given situation. First we should know what is a principle. Principle means those general guidelines which affect the decision making and the behavior of a person. So principle of management are the broad and general guidelines for the decision making and the behavior of manager. For example, if an employer is going to decide the promotion policy, he may consider the seniority, or he may have the other way to follow the principle of merit. So different managers will be the different opinion. To see these things, we have to learn the 14 principles which are given by the Fowles in this chapter. One more thing, principle of management are derived on the basis of observation and analysis. Means principle are not made like we have said and it made after the complete observation and analysis and conducting the experimental studies. There are 14 principles of management which are given by the Henry Ford. These 14 principles include division of labor, authority and responsibility, principle of command जिसका दूसरा नाम है principle of one boss, unity of direction, equity, order and discipline. After that, initiative, fair remuneration, stability of tenure, scalar chain, subordination of individual interest to the general interest, esprit de corps, and centralization and decentralization. We will study these principles in brief one by one. First principle is division of labor. डिवीज़न ऑफ लेबर के नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि डिवीज़न ऑफ लेबर मीन्स कि जहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं समथिंग, तो यहाँ पर जो डिवाइड करना है वो लेबर को डिवाइड करना है, मतलब कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल टास्क सो दैट अ पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग दैट टास्क बिकेम एफिशिएंट इन दैट वर्क. Division of labor stressed on the specialization of job. Work of all kind must be divided and allotted to the various person. Simple and result in efficiency. Help the individual in acquired speed, accuracy in the performance. Specialization lead to efficiency and economy in the spheres of business. Let me explain. Division of labor क्या कहती है? Work should be divided into the small tasks. And one person should assign that small task. If a person do that work regularly, then he will become the expert in that work. For example, if I need to give a project on VST, I may assign first chapter to Aryan, second chapter to Mansi, third chapter to Karan Best, fourth chapter to Sam, fifth chapter to Afzal, as on. So the first chapter which is given to Aryan, he will become perfect in that chapter, and second chapter Mansi will become perfect. So what will be happen, then all become perfect in their own work. If I have given all work to Aryan, he may consider himself overburdened, he may not complete the work. So the work should be divided into the small parts, and every person should assign that small part so he can do it in the more efficient manner. Second principle is authority and responsibility. Look, authority means right to power, and responsibility means obligation. The right to issue command along with responsibility, which must go the balanced responsibility for its smooth functioning. Let me explain. This principle says then authority and responsibility must be balanced. If we assign the authority to a person,
and will not give the responsible, then he may use his authorities. And if we have given responsibility only and not given the authority, he may not able to do the work. How? मैंने एक क्लास में किसी भी स्टूडेंट को भविष्य को एक क्वेश्चन दिया कि ये क्वेश्चन सब स्टूडेंट्स को कंप्लीट कराना है, बट उसको अथॉरिटी ये नहीं दी कि ये क्वेश्चन जो कंप्लीट करवाना है इसके लिए आप स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सकते हो या फिर आप क्लास को माइंड कर सकते हो। अगर मैंने उसको राइट नहीं दिया, पावर नहीं दी, कमांड नहीं दी, तो हाउ ही विल बी एबल टू कंप्लीट दिस वर्क, हाउ ही विल गेट द क्वेश्चन डन? He may not do the work. At the same time, if I have given the responsibility to do this work to anybody else and has not given the power, then he will not be able to do his work. We can understand with this slide, authority is given to a person, he should also be made responsible for the same. He should also have the authority if anyone is made responsible. Authority refers to the right of superior and responsibility means obligation for the performance of the job assigned. Should be balanced. यहाँ पर बुलेट्स गलत लग गए हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अथॉरिटी का नॉर्मल मीनिंग क्या है, किसी को पावर देना, राइट देना कि वो कुछ वर्क कर सके, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उससे वो क्वेश्चन आंसरेबिलिटी क्रिएट करने के लिए ऑब्लिगेशन उसे बनाना। अगर मैं किसी को अथॉरिटी दे दूँ कि ये काम आपको करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दूँ, मैंने बोल दिया भविष्य को क्लास माइंड करो, उसके बाद मैं उससे नहीं पूछती कि क्लास माइंड हुई या ना हुई, तो ही मे डू व्हाट इन डिसिप्लिन इन क्लास, ही मे ओवर रिएक्ट, वो अपनी दुश्मनी भी इसमें निकाल सकता है, क्योंकि उसे पता है कि मैम को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है ही नहीं, मुझे मैम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी नहीं थी, बस कहा था, पावर है, कुछ भी कह दो किसी को। यस, बट और दूसरा, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी उसको कि भाई मुझे नहीं पता, सब स्टूडेंट्स का वर्क कंप्लीट होना चाहिए, हाउ आई डोंट नो, बट मैंने उसको एक पावर नहीं दी किसी को कुछ भी कहने की, तो वो काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग ये है कि अगर किसी पर्सन को आपने पावर दी है उसी को रिस्पॉन्सिबल बनाओ, अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाया है तो उसी को पावर दो। तो इसको हम ये कह सकते हैं, अथॉरिटी माइनस रिस्पॉन्सिबिलिटी विल रिजल्ट इन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनस अथॉरिटी विल इनइफेक्टिव। खाली अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो अ पर्सन कैन मिसयूज, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो इट मे बी इनइफेक्टिव, क्योंकि वो पर्सन वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड. Each worker should have one boss with no other conflicting line of command. What does it mean? एक पर्सन को जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर उसको मोर देन वन पर्सन कमांड मिलेगी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, then he will not able to do work efficiently. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके दो अकाउंट टीचर है, एक कहता है इस मेथड को फॉलो करो, दूसरा कहता है दूसरे को फॉलो करो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप दोनों में से किसी को भी नहीं कर पाओगे। समटाइम्स इट हैपन कि एक ही दिन में सब टीचर्स ने टेस्ट रख दिया, तो व्हाट यू विल डू, यू विल नॉट कंप्लीट द वर्क ऑफ एनी टीचर। तो इसी ऐसी बिजनेस में कि अगर आप एक वर्कर के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएंगे और वो पर्सन अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आई एम एक्सप्लेनिंग इट मोर. अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर and be accountable to only boss at a time. A person should be responsible only for one boss. If there will be more boss, then he will not do work of any boss. A subordinate should not receive instruction from more than one person. अगर two person same टाइम पर instruction देंगे, then he will not able to follow any instruction. डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड. दो सबऑर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए, मीन्स एक पर्सन को दो लोग काम नहीं देना चाहिए. द एंटरप्राइज इज डिसिप्लिन, स्टेबल एंड ऑर्डरली एग्जिस्टेंस. एक एंटरप्राइज को डिसिप्लिन होना चाहिए. हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट.
A subordinate should not receive instruction from more than one person. Next principle is unity of direction. यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस क्या है ये? अब यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा था हमने अभी, तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या था? एक पर्सन को एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए, एक से ज़्यादा मिलेंगे तो ही विल गेट कन्फ्यूज, ही विल नॉट एबल टू वर्क. एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है देयर मस्ट बी वन हेड फॉर द वन प्लान. दैट इज people engaged in the same kind of activities must have the same objective in a single plan. This is essential to ensure unity and coordination in the enterprise. Unity of command does not exist without unity of direction but does not necessarily flows from it. तो ये डेफिनेशन तो क्लियर नहीं हो रही है आपको. Let me explain. One hat, one plan. Related activities should be grouped together. Efforts of all members of the organization should be direct towards the common goal. अब मैं एक्सप्लेन कर दूँ. एक प्लान के लिए एक हेड होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मेरा दोनों ही बिजनेस है ऑटोमोबाइल में. मेरी 2 व्हीलर भी है और 4 व्हीलर भी है. एक 2 व्हीलर के लिए प्लान बनाया और एक मैंने 4 व्हीलर के लिए बनाया. तो 2 व्हीलर का एक ही हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, और 4 व्हीलर का एक अलग प्लान होना चाहिए. और लेकिन सबका जो डायरेक्शन है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए? एक प्लान की तरफ एक पर्सन मूव करे, दूसरे के लिए दूसरा. तो यूनिटी ऑफ कमांड इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अगर डायरेक्शन नहीं है, एक प्लान नहीं है, तो आप यूनिटी ऑफ कमांड को भी फॉलो नहीं कर सकते हैं. इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, कि एक एक्टिविटी बार बार नहीं होगी. एंड इट अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, सबको ये क्या करेगा? अफेक्ट करेगा. अगर 2 मैन्युफैक्चरिंग मोटर बाइक्स भी हैं, कार भी हैं, तो 2 सेपरेट डिवीज़न होने चाहिए और 2 सेपरेट डिवीज़न के 2 इंचार्ज होने चाहिए और सबको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, सो दैट एक वर्क दोबारा ना हो और दूसरा कि आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो. नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑर्डर. ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर का यहाँ पर मतलब क्या है? The order means there should be one place for everything, and person as well as things should be found on that place only. अगर एक पर्सन या मटेरियल उस जगह पर नहीं मिल रहा जहाँ होना चाहिए, तो इट मीन्स कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने यूनिफॉर्म अपनी अलमीरा में नहीं रखी तो मॉर्निंग में आप मम्मी से डांट खाओगे कि जहाँ बोला था वहाँ क्यों नहीं रखा. अगर बुक्स आपके बैग की जगह कहीं और है, किचन में है, तो वर्क नहीं होगा. आपका काम पढ़ना है, आप अपने स्टडी रूम में ही होने चाहिए, वहाँ नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा. सिंपल. बोथ मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर आर नेसेसरी. द फॉर्मर मिनिमाइज द लॉस ऑफ टाइम एंड यूजफुल हैंडलिंग ऑफ मटेरियल. द लेटर इज अचीव थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेलेक्शन. मतलब अगर आप मटेरियल को ऑर्डर में रखते हो तो आपका जो टाइम होगा खोने वाला वो कम हो जाएगा. आप इजीली मटेरियल को हैंडल कर पाओगे. और अगर आप सोशल हेयर मीन्स लोगों को, वर्कर्स को आप रखोगे ऑर्डर में. ऑर्डर मीन्स उनकी जिस प्लेस पर उन्हें होना चाहिए. प्रिंसिपल शुड बी इन प्रिंसिपल ऑफिस, टीचर शुड बी इन क्लास, लाइब्रेरियन इन द लाइब्रेरियन. अगर वैसा ही है तो ऑर्गेनाइजेशन जो आपका होगा वो अचीव कर पाएगा अपने गोल्स को. ऑर्डर is concerned with the proper and systematic arrangement of things and people. Arrangement of things is called material order. Placement of people is called social order. Means आप अगर थिंग्स का अरेंजमेंट करते हो तो हम इससे बोलेंगे मटीरियल ऑर्डर. अगर हम पीपल को प्लेस करते हैं, मतलब कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, प्रिंसिपल शुड बी इन प्रिंसिपल रूम, मॉम शुड बी एट होम, टीचर शुड बी इन क्लास, लाइब्रेरियन शुड बी इन लाइब्रेरी, देन इसको आप बोलेंगे सोशल ऑर्डर. मटीरियल ऑर्डर शुड बी सेफ, अप्रोप्रिएट एंड स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरी आर्टिकल. हर आर्टिकल के लिए एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, बुक शुड बी लाइब्रेरी and your clothes should be in your mirror. So many example you can take. The utensil should be in kitchen and
सोशल ऑर्डर, सिलेक्शन एंड ऑर्डर अपॉइंटमेंट ऑफ मोस्ट सुटेबल पर्सन ऑन द सुटेबल जॉब। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस प्लेस पे जिस पर्सन को होना चाहिए वही मिलनी चाहिए, तभी आप वर्क एफिशिएंटली कर पाओगे। इफ़ कॉमर्स टीचर हैज़ गिवन द सब्जेक्ट टू टीच मैथ्स ऑफ 8th क्लास, शी मे नॉट एबल टू डू हिज वर्क एफिशिएंटली, शी मे नॉट एबल टू टीच एज वेल। तो जो जिसका काम है उसको मिलना चाहिए, वो पर्सन उसी जगह पे मिलना चाहिए, सामान भी उसी जगह पे मिलना चाहिए, जिससे कि आप थैंक यू सो मच गाइस। दिस